नमस्कार, सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज दीपावली के शुभ दिन के ऊपर हम लोग अपना थर्सडे का सत्संग जूम मीटिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो भगवत गीता का पाठ चल रहा है। हम लोग 18वें अध्याय पे हैं और उसमें अब 33वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। यतेंद्र जी, आप इससे पहले का थोड़ा बता के और शुरू करा दीजिए। धन्यवाद दीपक जी। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण हमको 3 प्रकार के सत, रज और तम से प्रभावित ज्ञान, कर्म, कर्ता इत्यादि के बारे में बता रहे हैं कि इन 3 में क्या भेद होता है, कैसा सात्विक कर्म होता है, कैसा तामसिक कर्म होता है, कैसा राजसिक कर्म होता है और कैसा तामसिक, राजसिक, तामसिक और सात्विक कर्ता इत्यादि। और फिर उसके बाद कृष्ण भगवान ने बुद्धि बताई, 3 प्रकार की बुद्धि, सात्विक, राजसिक और तामसिक बुद्धि। अब इसमें अगले इन श्लोकों में कृष्ण भगवान बता रहे हैं, हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं धृति के बारे में। धृति मीन्स steadfastness. Steadfastness means when you start any activity or any work, how you are stay on the course, you don't go off the course. So that's also 3 kind. तो श्लोक 33 में कृष्ण भगवान ने सात्विकी धृति यानी steadfastness के बारे में बताया था। And that steadfastness is developed through the practice of the good things, just like yoga. And the steadfastness that is developed through yoga and which sustains the activities of the mind. The life here means prana, and the senses is said to be determination in the mode of goodness. अब इस श्लोक में 34 श्लोक में कृष्ण भगवान बता रहे हैं तो राजसी कैसी, उसमें द steadfastness will why which one holds to duty, pleasure and wealth out of attachment and desire for reward is determination in the mode of passion. अब इसमें पुरुष या स्त्री एक ही गतिविधि में लगा रहता है। इस कारण से लगा रहता है, उसका रीजन इसलिए है क्योंकि उसमें फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट एंड फॉर द सेक ऑफ accumulation of wealth and because somebody is attached, and that's what keep him or her going. Then it is called, this determination is called in the mode of passion. जो पहले वाला determination था उसमें किसी रिवार्ड की नहीं थी, वो योग था, प्राणायाम इत्यादि जो कि शुद्धता लाते हैं जीवन में, उसके लिए था, किसी मटेरियल गेन के लिए नहीं था। ये जो है, ये डिटर्मिनेशन है, वो है मटेरियल गेन के लिए, अटैचमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। सो दिस इज इन ए मोड ऑफ पैशन, राजसिक मोड में। आपने श्लोक भी पढ़ना था संस्कृत श्लोक ये पढ़ा नहीं मैंने? अच्छा, यया तु धर्म कामार्थ का अर्थात धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। The steadfast will by which one holds to duty, pleasure and wealth out of attachment and desire for reward is determination in the mode of passion. So जैसा कि मैंने explain किया था, the reason why one does not deviate from the path is there is a strong passion for the pleasure and for the accumulation of wealth and strongly attachment. You see this activity, when you come to the Rajasic mode, there is always some kind of passionate activity and attachment
and expectation, and the expectation for the pleasure. And in the sattvic mode, whatever you take, there is a detachment, and this work is being done for the purification of the life. Now we come to the next. Yaya swapnam bhayam shokam vishadam madme vicha na bhumachati durmedha dhrati sa parsarthi. That unintelligent resolve is said to be determination in the mode of ignorance, in which one does not give up dreaming, fearing, grieving, despair, and conceit. So in this tamasic mode, one is steadfastness, is just without any deviation. One is attached to the negative side of things, the dreaming, the daydreaming, and sankalp vikalp all the time, fearing and grieving, despair and conceit. That's what, if somebody is that determination is the mode of ignorance. So we can see in the person activities in the mode of ignorance, they are always born out of delusion and grieving, despair, and all that thing. ठीक है, इसमें 3 हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक में कुछ क्वेश्चन हो तो आप अभी कर लीजिए। ओम जी। इसमें एक थोड़ा सा कि जो राजसिक की धरती है वो तो हमेशा कायम रहती है, जो सात्विक होती है तो बड़े बड़े योगियों को बड़े ही परिश्रम के बाद मिलती है और बड़ी साधना के बाद मिलती है, और ये जो व्यक्ति तो बहुत जरूरी है एक तरीके से, क्योंकि बिना उसके काम के आप अपने को माने अपने परिवार का पालन नहीं कर सकते हैं, अपना ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, तो उसमें तो काम ही एक गति रहती है हमेशा। और जो सात्विकी है उसमें गति शून्य रहती है करीब करीब, उसमें बस सिर्फ धारणा रहती है। तो मेरा मतलब ये है कि ये है, पर अगर उसको हम थोड़ा थोड़ा दूर करें तो अच्छा है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक बताया, बिल्कुल आपने ठीक बताया। वो राजसिक और तामसिक तो स्वाभाविक हैं, you don't have to make any effort for them. There is a natural inclination. Just like when you are going downhill, going downhill is always easy. It feels so comfortable if you are going downhill, but going uphill is a strong. So sattvic is going uphill. अभी इसमें अगले में बता देंगे, कृष्ण भगवान बता रहे हैं अगले श्लोक में कि अभ्यास याद रमते, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है सात्विक के लिए। आज तो हमेशा पूरे गीता में 12 अभ्यास ही आया है, 12वां अध्याय तो अभ्यास से पूरा भरपूर है। अच्छा, एक चीज मैंने देखा है कि गीता में 12 योगी का नाम आया है। हर चीज में योगी बनो, और योगी माने सात्विक बनो। That's right. तो अब 36वां करें जी। हाँ जी, 36वां करते हैं। इसमें यानी कि ये लग रहा है कि हम लोग इनमें तीनों गुणों में टाइम टू टाइम विचरते रहते हैं, तीनों गुणों से प्रभावित रहते हैं, कभी किसी गुण से ज्यादा, कभी किसी गुण से ज्यादा, मोस्टली इन द मिडल, पैशन, मोड ऑफ पैशन में। बिकॉज हमें दुनिया में रहना है, काम करना है, तो उसके लिए तो मोड ऑफ पैशन की जरूरत पड़ती रहती है। तो मोड ऑफ जो सात्विक मोड है उसमें बहुत रेयरली जाते हैं, यानी कि इन ट्रू सेंस। हाँ, अगर आप मतलब रहने के लिए, टू सस्टेन करने के लिए हमको कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है, लेकिन अगर वो इसी भाव से की जाए कि आई एम डूइंग विद द to sustain, not with any kind of greed or passion, then those activities are also in the mode of goodness. Okay, that's good. That's what I was trying to get at. Yeah. ठीक है, आपने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। हाँ जी। मोड ऑफ पैशन क्या मतलब है जी, क्या कह रहे हैं? मोड ऑफ पैशन कहा आपने। हाँ, वो उसको राजसिक को कुछ लोग मोड ऑफ पैशन भी कहते हैं। पैशन इसलिए होता है कि उसमें there is a strong attachment in the rajasic mode. Yeah.
या जयंती जी कुछ कह रही? राजसिक मीन्स देखो अच्छा, अच्छी फैमिली में जब बर्थ, या तो सुख, ज्यादा पैसा और सुख शांति, उसको राजसिक बोलते हैं। तो वो अपने कर्म से नहीं मिलता है, लास्ट जन्म के कर्म से मिलता है। सब चीज जो भी आपको अब मिली है वो पिछले आपके कर्मों के फलस्वरूप ही मिली हुई है। या एक बात है, जो राजसी का शब्द है ना, वो मेरे राजा से आया है। और राजा के माने ये है कि वो भोगवृत्ति होती है राजा की, और उसमें सब उसके पास सारे सामान्य रहते हैं और उसको अथॉरिटी रहती है। तो राजसी के अंदर थोड़ी सी एक है, राजसी और राजा में क्या अंतर है? अब ये पता नहीं आप उसको राजा और राजसिक को कनेक्ट कर रहे हैं। और मैं कर नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा उस तरह राज का वो राजसी का जो कहाँ शुरुआत या कहाँ से? ये शब्द कुछ ऐसा है, राज। ऐसे तो जो हम जो एक राज योग भी कहते हैं, इसमें राज योग जो टीच करते हैं, भगवत गीता का ही पार्ट है राज योग। तो वो यानी कि योगों का राजा। अब जो राजसिक है वो आई डोंट नो, इट कम्स फ्रॉम राजा और इट्स कम फ्रॉम रज और इट्स कम फ्रॉम वॉट एवर। मुझे भी नहीं इसका पता है, बट थोड़ा सा रिसर्च इसके ऊपर कर सकते हैं कि क्यों राजसिक क्यों नाम रखा गया है इसका। बट या ऑफ कोर्स, जैसे आपने कहा कि राजा को भोगों से ज्यादा मतलब है और उसकी प्रजा को भी भोगों से मतलब है, तो उनके लिए इंतजाम करता करता वो उसी राजसिक व्यवस्था में रहता है। और पर राजसिक ऐसे भी राजा हैं हुए हैं जो राजा जनक जैसे, जो कि राजा होते हुए भी सात्विक मोड में रहना जानते थे। तो वो तो पता आपको अच्छी तरह पता। राजसी अध्याय, उसका नाम ही राजयोग, या नवाध्याय राजयोग है, बिल्कुल राजयोग। या देखो राज, इसलिए राज किंग इन नॉट इन द सेंस ऑफ किंग आया है। राजसिक है एक्टिविटी, मतलब activity means when there is a more action, that's a rajasic. यहाँ से ये ठीक मालूम पड़ता है, एक्टिविटी इज मोर कनेक्टेड टू रज। अच्छा, और इसको कई जगह इसको वैकारिक भी कहते हैं। उसके इन सत्य रजतम के अलग एक और डिफरेंट नाम भी है, वो भी मुझे याद नहीं आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, खैर यहाँ पे ये समझ लीजिए एक्टिव, जहाँ पे एक्शन है, जहाँ पे यू नो देयर इज मोर थिंग्स आर गोइंग ऑन। एक्शन के बिना तो रह सकता नहीं आदमी, तो हम तो रज में हमेशा रहते हैं। नहीं, वो रज वैसा रज है जो कि उसके लिए है, गेन के लिए। लेकिन अगर आप एक्शन के बिना कोई नहीं रह सकता है, लेकिन आप एक्शन ऐसा ले रहे हैं जो कि जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, तो वो एक्शन सात्विक मोड में है। या वही तो जैसे वो कर्मों की थ्योरी में बताया था, वो अकर्म में बदल जाता है। हाँ हाँ, अकर्म में हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब बड़ा इम्पोर्टेंट है, सुख, 3 तरीके के सुखों के बारे में बताया है नेक्स्ट में। हाँ जी। हाँ, तो उसमें यह है, सुखम त्वेदानीम त्रिविधम श्रृण में भरतर्षभ अभ्यास आद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। And now hear from me, O Arjun, of 3 kind of happiness in which the embodied soul rejoices and can even reach the end of all suffering. तो इसमें जो पहला पार्ट है ना, सुखम त्रिदानीम त्रिविधम श्रृण में भरतर्ष, ये तो इतना बता रहा है कि 3 तरीके के सुख होते हैं। और जो दूसरा पार्ट है, अभ्यास आद रमते यत् दुखांतम च निगच्छति, ये जो है एक्चुअली ये कनेक्टेड है नेक्स्ट श्लोक से। अच्छा, वो है क्या कहते हैं, सात्विक सुख के बारे में। तो कई किसी जगह ये 2 36 37 एक साथ मिला के कहे जाते हैं, जिससे क्या समझ में आ जाए। तो इसमें 37वें में है, देखिए, यत् तद अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम
atma buddhi prasadjam. That which seems like poison at the first, okay, very difficult, and it doesn't give you this sukh, jo sattvic sukh hai, in the beginning it doesn't give you any sukh, like it feels like a pain, but tastes like nectar in the end. But when your abhyas is finished, then you feel the benefit, is the kind of ecstasy and anand is said to be the happiness in the mode of goodness. It is generated by the pure intellect that is situated in self knowledge. तब देखिए जो पहला था ना, ये सुख जो है वो आपको बिना प्रैक्टिस के नहीं मिल सकता. तब पिछले श्लोक का सेकंड पार्ट में बताया था, अभ्यास आद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति. मतलब अभ्यास के बाद आदमी इसमें रम जाता है, उसके बाद दुख दूर हो जाते हैं. लेकिन है क्या कि इसमें यत तद अग्रे विषम है. शुरू में तो पेन देगा, क्योंकि जब आप सब अपने सुख जो एंजॉय कर रहे थे एंटरटेनमेंट से हट के फिर मेडिटेशन पे बैठें या यम और नियम को पालन करें, बिना यम नियम के लाइफ कितनी अच्छी लगती है कि मतलब जब चाहे उठ गए, जब चाहे खा लिया, जब चाहे जो भी जैसा भी तबीयत हुई, तो ये सब बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन इनको छोड़ना पड़ता है सात्विक सुख के कारण, यम और नियम और प्राणायाम. सो we have to do in the practice, so it's painful in the beginning, but once you get a hang of it, and then that kind of sukh is in the mode of goodness. Isme you don't need, for this kind of sukh, you don't need any other implements. You don't need anything outside. This sukh comes from the inside. इसमें लिखा है बुद्धि आत्म प्रसादजम. ये आत्म साक्षात्कार के कारण, आत्मानुभूत के कारण ये सुख प्राप्त होता है, क्योंकि जो आत्म तत्व है वो हमेशा उसमें that is the greatest happiness, सत्य और आनंद उसमें है. तो ये रहा सात्विक सुख. सात्विक का जो अर्थ है ना, ये जो मोड है, आई मीन उसका जो आप बता रहे हैं इंग्लिश के अंदर, उसका ट्रांसलेशन कुछ पूरा नहीं होता है. सात्विक नहीं, वो नहीं होता. सात्विक को सत्य के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा. सत मीन्स एग्जिस्टेंस, and raj means activity, and tam means heaviness, the inertia. तो एक तो हुआ lightness, sat, existence, which has reality, which exists. तो सारी चीजें संसार में आपको दिखाई दे रही हैं, they do not exist, they are only form, they are only shapes. But Bhagavad Tattva or Atma Tattva, that has a real existence. But a goodness doesn't actually sattvic or goodness. No, वो goodness तो correct नहीं translation. Goodness and passion or ignorance, I mean, these are not correct translation. This just like especially in the ignorance, I mean, it's not the tamas is not ignorance. Tamas is inertia. Inertia means if something is, Raj is trying to move something, okay, and Tam is trying to resist that. And it's not always bad, because suppose if there is a तूफान है, अगर उसको रोकने के लिए जो inertia ना हो, तो वो तूफान आया तो वो चलता ही चला जाएगा. ये कितना इम्पोर्टेंट है ये संस्कृत लैंग्वेज को हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है ना. उसके बगैर हम लोग काफी लॉस्ट हो जाते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशंस में. और एक मूवी भी बनाई थी किसी ने, उसका नाम था लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. असल में भगवान तम को धारण करते हैं. वही देखिए, जो आप देखिए अवतार में, लेकिन राम अवतार में जो लक्ष्मण जी हैं, वो
शेषावतार कहे जाते हैं। और शेषावतार जो है वो तमोगुण का अधिष्ठान देवता है। शंकर जी तमोगुण के प्रिजाइडिंग डीटी हैं। और उसमें कृष्णावतार में जो बलराम है ना, वो है शेषनाग के अवतार। और शेषनाग वो है जो कि प्रलय के बाद जिसके ऊपर भगवान विष्णु शयन करते हैं। तो भगवान विष्णु तो हो गए वो सत्व, लेकिन सत्व को आधार क्या है? वो उसका सत्व का आधार तो वो शेषनाग तम है ना। वो तम में स्थिरता है। हाँ, तम में स्थिरता है, वो हिलता डुलता नहीं है। हमको चाहिए जब आप मेडिटेशन के लिए आसन में बैठते हैं तो आसन की स्थिरता तो है, उसके लिए आपको तम चाहिए, मतलब स्थिर रहे, जिससे कि बुद्धि आपकी स्थिर रहे। ये सब दैट इज द तमा। और तम में डार्कनेस है। रात को नींद का भरपूर आनंद लेना है तो हमें तम में रहना पड़ता है, स्थिरता में। तो ये है जरा थोड़ी सी, अगर आप अच्छा एक्सप्लेनेशन हो गया सारा। हाँ, लोग जजमेंटल हो जाते हैं कि मतलब गुड बैड एंड अगली। दे आर नॉट गुड एंड अगली, दे आर ऑल थ्री। Yeah, so many things in between. Yeah. In the end, it will come to the conclusion all is good. There's no bad. All is good at its own place. And it's in its own place. Yeah. असल में तम आधार है। तम में ही सारा जब पूरा शरीर जाता है ना, तो तम में ही पूरा हो जाता है, स्थिरता में पहुंच जाता है सारा। सारे जो अपने तत्व हैं वो मिल जाते हैं, तो उसमें बस तम में ही जाते हैं। चलिए अगला 38। हाँ, अगला ये देखिए, इसमें है विषेन्द्र संयोगात यत्तद अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषम तत् सुखम राजसम स्मृत। हाँ, ये है, देखिए इसमें दो चीजें बताई। एक तो आवर सेंसेस और सेंस के ऑब्जेक्ट। तो जब सेंसेस से सेंस का ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं तब ये राजसिक सुख होता है। और ये जो है बिगिनिंग से ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एंड में जाके परिणाम विषम, लेकिन अंत में जाके इज लाइक ए पॉइजन फील होता है। तत्सुखम राजसम, उस सुख को राजसिक सुख कहते हैं। हैप्पीनेस इज सेड टू बी इन द मोड ऑफ पैशन व्हेन इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द कांटेक्ट ऑफ द सेंसेस विद देयर ऑब्जेक्ट्स। सच हैप्पीनेस इज लाइक नेक्टर एट फर्स्ट बट पॉइजन एट द एंड। तो हम देख सकते हैं हमारी जीव है वो तो सेंस हो गया, और जो अच्छे अच्छे पकवान है, स्वादिष्ट पकवान, वो हो गए ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंस। तो जब दोनों कांटेक्ट में आते हैं, आई मीन जैसे ही बढ़िया क्या कहते हैं पकौड़ी या कचौड़ी जब मुंह में गई ना, तो फिर कितना सुख मिलता है। लेकिन वही जब खाते खाते अपच हो जाए तब वो दुख देता है। या इसी तरीके से जैसे म्यूजिक है, जैसे ही कानों का जो विषय है वो है ध्वनि, तो अगर बिल्कुल सुरीली ध्वनि, वाद्य यंत्र सब बज रहे हैं तो कानों को सुख हो रहा है, कानों के थ्रू हमको सुख मिल रहा है। तो ये जो सुख है फिर ठीक है, जब तक वो बाजा बज रहा है तब तक तो हमको मजा आ रहा है, लेकिन जब बंद हो गया तब वो सारा डांस और वो भी खत्म हो गया ना। और इसी तरीके से आप कोई भी ले लीजिए, आंखों का सुख देख लीजिए, तो ये है। अब ये जो है इसमें कहते हैं परिणाम विषम, लेकिन एंड में जाके ये जो है जस्ट लाइक ए पॉइजन, वी कैन नॉट फील दैट इट्स रियली लाइक ए पॉइजन। अगर आपने 2 घंटे म्यूजिक एंजॉय कर लिया तो इसका मतलब एंड में आपको पॉइजन थोड़ी हो गया। लेकिन अगर क्या कहते हैं महफिल में लगे रहे रात भर और फिर उसका दूसरे में काम नहीं किया, देन इट्स ए विषम। तो ये जो है अगर कंट्रोल में रहे, तो अगर आउट ऑफ कंट्रोल अगर इस सुख को लेने की कोशिश करें तब उसमें एक बात है, इसमें इंद्रियों का सहयोग भी अगर
सुख हाँ जी। सुख में वो जैसे मान लो जैसे आपने भगवान की मूर्ति के दर्शन किए और आपको बहुत सुंदर विग्रह लगा, हाँ वो संयोग है, इंद्रियों का संयोग हुआ, पर हाँ वो उसमें परिणाम में उस विष नहीं है। नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, वो विश नहीं है। या दैट्स ट्रू। Yeah, so it's like how you use your facilities that you know आपके जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप कान का कह रहे थे, अब वैसे मधुर संगीत आप कह रहे हैं कि ठीक है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अच्छा है, उसी मधुर संगीत को थोड़ा सा वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए, जैसे वो बैंक्वेट हॉल्स में करते हैं, तो वो पता है क्या होता है, जो जो डीजेज है ना, डीजेज, वो थोड़ी देर बाद ना, जब उनकी थोड़ी सी एज हो जाती, बहुत बहुत भी ओल्ड नहीं होते, थोड़ी सी एज और हो जाती 40-50s के, उनकी हियरिंग चले जाती, बिकॉज दे आर ऑलवेज लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक, ऑलवेज, एवरी वीकेंड दे आर डूइंग दैट, उनकी हियरिंग खत्म हो जाती, देन दे हैव टू पुट हियरिंग एड और समथिंग और गेट द ट्रीटमेंट। और वैसे ही आंख से देखने वाले जो बैठे बस कंप्यूटर पे गेम्स ही गेम्स, थोड़ी देर बाद फिर उनको चश्मा पहनना पड़ता है मोटा मोटा। या सो ये खाने वाले के लिए बहुत ज्यादा मीठा 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 मीठा, चॉकलेट, ये खाया वो खाया, उसके बाद फिर ओहो मेरी तो डायबिटीज हो गई, अब मुझे मेटफॉर्मिन खानी पड़ेगी। या तो देख सकते हैं आप लोग की, या वो पॉइजन बन जाता है बाद में। और ये जो नहीं, मीठे से डायबिटीज नहीं होती है, सॉरी। नहीं होती है? नहीं, मीठा खाने के जब हो जाए डायबिटीज, लेकिन मिठाई खाने से नहीं होती है। क्यों नहीं होती? जो ज्यादा अब्यूज करेगा तो उसको होएगी क्या नहीं, कह रहे हैं आप ये डॉक्टर? मेडिकल फैक्ट है, वो मेडिकल फैक्ट अगर है। कंट्रोल करेगा खाने में मीठा, तो वो डायबिटीज से बच सकता है कि नहीं बच? मैं तो अभी तक बचा हुआ हूँ। हाँ, डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर साहब हैं। 5 पीस थोड़ा खाएंगे, 1 लड्डू खाने में कुछ नहीं होता है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, 6 लड्डू दररोज खाएंगे तो होगा। हाँ होएगा ना, फिर 5-5 लड्डू खाएंगे तो ये कौन खाएगा? नोबडी विल ईट। नहीं, पर जो लोग खाते हैं उनको फिर वो हो जाता है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि भी एंड में पॉइजन बन गया उसका, ज्यादा यूज करने से। में यहाँ पर जो गीता की जो साधना है, हाउ द प्रैक्टिकल गीता इज, यू नो, हर चीज को साफ साफ बता देती है। तो ये गीता कितना सार्थक है हमारे कर्मों के लिए। हाँ अच्छा, तो ये तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने समझ लिया। अभी ये राजसिक तो सुख समझ में आ गया। इसमें 2 रिक्वायरमेंट है कि एक तो सेंस जब अपने सेंस के ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट करते हैं तब ये सुख मिलता है, और जैसे ही खत्म हो गया ना, उसके बाद ये सुख भी खत्म हो जाता है जब कांटेक्ट। फिर आप उसको याद करते रहिए कि हमने कितना अच्छा म्यूजिक सुना था। अच्छा, म्यूजिक में भी जो है ना, म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी 3 तरीके के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। हाँ, वो भी होते हैं। जैसे तबला है ना, वो तामसिक है क्योंकि उसके लिए किसी जानवर को मारना पड़ता है, उसको पीटना पड़ता है। और जो सारंगी है, वीणा है, वो राजसिक है, उसमें तार खींचना पड़ता है। लेकिन जो बांसुरी है, वो उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, वो सात्विक में। इसीलिए कृष्ण भगवान बांसुरी हो जाते हैं और कुछ नहीं हो जाते। हर किसी की बात, you need all the 3 to have a music. मेरे तबले के म्यूजिक बनते हैं क्या? बनेगा नहीं। सो इसीलिए तीनों गुणों से सृष्टि चल रही है ये जो। चलिए, अब है नेक्स्ट वन। नमस्कार। कहाँ चल रहे हैं हम 18वां अध्याय भगवत गीता का और 39th श्लोक पे आ गए हैं। थैंक यू। सुरेंद्र जी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और कृष्ण भगवान बता रहे थे 3 टाइप ऑफ हैप्पीनेस, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो उसमें बताया था कि जो सात्विक है वो हैप्पीनेस, उसके लिए आपको किसी एक्सटर्नल एड की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आपके भीतर है, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। वो हैप्पीनेस ऐसी है कि इन द बिगनिंग, जब व्हेन यू ट्राई टू एक्वायर दैट सात्विक हैप्पीनेस, देन इन द बिगनिंग it's a troublesome, it feels like poison, but once you gain it,
then it's sustainable. और इसके लिए जरूरत नहीं पड़ती, जैसे मेडिटेशन है, योग है जो आप करते हैं, तो उसी मेडिटेशन के लिए बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे कि लोगों को परेशानी होती है. बट वंस यू गो in the deep in the meditation, then that kind of pleasure and happiness you get, that is coming from within your soul. You don't need any outer thing. And the Rajasic happiness is where you need some external aid for your enjoyment of your senses, just like music, eating, dancing, and all that. Now Lord Krishna is going to tell about the तामसिक. नहीं, आप एक कहना भूल गए, आपने इंस्ट्रूमेंट को भी राजसिक तामसिक बोला ना, वो भी बताओ. हाँ, तो राजसिक तामसिक इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, जैसे जो इंस्ट्रूमेंट which requires kind of violence, just like tabla. Tabla needs a skin of a dead animal, and it has to be beaten. And then next is Rajasic is like sarangi and guitar, where you pull the string. And मैंने ऐसा सुना हुआ है कि जो तबला है, drum, they are very sensuous kind of instruments. Sensuous. इसमें गीता से नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसका जो it really creates a rhythm in you which could be very excitable. That's what I meant to say. I knew about that part. Yeah, even though I play karta hu, but that if this can really raise your sensuous emotions, if I put it that way. ये actually ये मैं कहीं लिखा, मैंने कहीं देखा है. लिखा कहीं नहीं है. I put but I've heard it many times over the time. I've heard it many times. Okay. Flute is very pure and very vibrant. The tabla hai, if played in a wrong way, can be very excitable. The word is excitable rather than sensuous. Yeah. Anyway, I just had to say something. Yeah. और सात्विक में बांसुरी है, उसमें आपको you don't need anything, just you have to blow it, and it gives the most beautiful music. Those who like it. या सीटी बजा ली. So now we move on to 39. यद अग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहन आत्मना निद्रा आलस प्रमादो थम तत्तामसम उदाहरतम. That happiness which covers the nature of the self from beginning to end, and which is derived from sleep, indolence, and negligence, is said to be in the mode of ignorance. The defining feature is that it takes you away from your real nature. आत्म साक्षात्कार से दूर ले जाती है ये तामसिक. And this is derived from the sleep, indolence, and negligence. Now sleep, the normal sleep, okay, there is nothing wrong with that. That is not in a mode of, nothing wrong with that normal sleep. The sleep which people sleep because of the laziness, okay? Laziness. That like sleep is like talking me about. Like me who don't get up early morning and So do some okay. meditation. Yeah. चलिए. Indolence and negligence is said to be in the mode of ignorance. We understand what is Lord Krishna is talking about. We have sometimes, something has to be done, but we don't want to do, and just lazy, lying down. So that's in the mode of ignorance. And the feature is that it takes away from your self-knowledge. Self-knowledge, yeah. Okay. 40. Now from Shlok 40, this says something change. Whatever Lord Krishna wanted to tell about three kind of intelligence, कर्म कर्ता, उसके बाद अभी ये बता रहे हैं कृष्ण भगवान, ना तदस्य पृथिव्याम वा दिव्य देवेषु वा पुनः सत्तम प्रकृति जैर मुक्तम यदे भी स्यात् त्रिगुण फिर गुण है.
No living being on earth or the higher celestial abodes in this material realm is free from the influence of these three modes of nature. So anything from the human beings to the higher beings to the lower beings to the animals to the vegetables, any place you go, these are three types of material realm you will find. You know, if you look at the vegetables, okay, there are three kinds of vegetables, sattvic, rajasic, and there are three kinds of animals, human beings, and even the celestial being, the demigods. Right up to Brahma. Yeah, right up to Brahma. सन में गीता के अंदर ये पूरी गीता का सार मेरे ख्याल में गुण ही है। प्रकृति से निकले गुण, ये बहुत गीता में काफी गुणों के बारे में बार बार आया है। हाँ, उसमें because it encourages you to be the गुणातीत, क्योंकि जो आत्म तत्व है वो that is गुणातीत। उसमें सात्विक से भी परे सुख है, मतलब सात्विक सुख से भी ऊपर का सुख है। Yeah. That's गुणातीत। Yeah, गुणातीत। तीत का मतलब बता दीजिए, उनको पता लग जाएगा फिर। तीत beyond, you know, if something surpasses. Yeah. दूर है, अलग है। Yeah. ऊपर, जिसको पार कर लिया। Beyond the gunas. Yeah, naturally beyond the gunas, because it's different prakriti, right? Yeah. It's part of the para prakriti, the atma tattva. I'm talking about atma tattva, जिसको आप कहते हैं कि आत्मानुभूति कर लीजिए, तो then you will be gunatit. Transcendental. Yeah. So because that is part of the para prakriti, and para prakriti is not affected by the three gunas. Because उसको दैवी प्रकृति भी कहते हैं। दैवी प्रकृति is the prakriti of the Lord himself, you know. Because there are two kinds of prakritis, para and apara. Yeah. Apara is what we are living in, like thinking that we are part of it. And once we achieve that kind of stage where we know we are not apara, part of apara prakriti, we are part of, but only this body is part of apara prakriti. The real self is part of the para prakriti. Yes. And then प्रकृति और ये तीनों गुण स्थित प्रज्ञ के ऊपर ही हैं सारे। स्थित प्रज्ञ और ये गुणातीत एक ही चीज है। ठीक है। स्याति फिर गुणे अब 41 चलते हैं। ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट, तीनों बहुत अच्छे हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय और उसके वैश्य के सबके गुण बताएं। Who is to be fit to be ब्राह्मण? ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम चा परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभयर गुण। Now on the level of the human being, there are three types of people with the prominent gun. So he's saying there is a Brahman, Kshatri, and Vaishya and Shudra. The duties of the Brahmans, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras are distributed according to their modes, in accordance with their gunas, and not by birth. ये मतलब बर्थ के बारे में तो अभी उन्होंने कुछ बात ही नहीं की थी, क्योंकि इसमें कंट्रोवर्सी लाने से कोई फायदा नहीं। जो है लॉर्ड कृष्णा इज ओनली टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट काइंड ऑफ गुण आर नीडेड इन
in these three kind of Yeah. things. Okay. तो अगर शूद्र के अंदर ब्राह्मण के गुण हैं तो ब्राह्मण ही है वो। We will take up later. First, let's see what he's saying, because that's we are going ahead. इसमें है इसमें लिखा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं. स्वाभाविक मीन्स द काइंड ऑफ नेचर somebody has. Okay. अब इसमें there is no question of here anything else here. That's what saying. तो इसमें देखिए क्या है. शमो दमस तपः शौचम शांतिर आर्जवम एवचा ज्ञानम विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम. कितना 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 कठिन है. नहीं, हाँ वो तो होगा. देखिए इसमें है ट्रांक्विलिटी, restraint, austerity, purity, patience, integrity, knowledge, wisdom, and belief in hereafter. These are the intrinsic qualities of work for Brahman. These are intrinsic qualities. These qualities he or she has not imposed upon himself. They are inborn, just like the ice is cold. Okay, so it's not something which has been acquired. This is there. So इसमें हम करते हैं शम, हिंदी में कर देते हैं. ट्रांक्विलिटी कहा था. शम means शांत स्वभाव. It's not. Dam means atma sanyam. I mean, somebody can control themselves. Atma sanyam. Tapa means somebody can withstand heat and cold and all that. Shaucham, pavitrata, shanti, sahishnata, tolerance. Arjam means simplicity and satyanishtha. He ज्ञान, knowledge and vigyan, आस्तिक्यम, भक्ति और विश्वास, ब्रह्म कर्म स्वभावजम. ये स्वाभाविक ब्रह्म कर्म है. ब्रह्म कर्म ब्राह्मण के. तो ये है साहब, इतनी चीजें चाहिए to be. ऐसे कितने ब्राह्मण हैं? How many Brahmins like this who fit in this definition? Yeah, there are not many. तो अब अच्छा उसको कंपेयर कर लीजिए उससे, क्षत्रिय स्वभाव से. शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम. valor, strength, fortitude, skill in weaponry, resolve never to retreat from battle, large-heartedness in charity, and leadership abilities. These are the natural qualities of work for Kshatriyas. तो इसमें देखिए कितनी चीजें बताई. पराक्रम, शौर्य मीन्स पराक्रम, तेज मीन्स शक्ति, धृति मीन्स धैर्यता, दृढ़ता, दाक्ष्यम युक्त पूर्वक सूझबूझ से लड़ाई लड़ना. दानम मतलब चैरिटेबल नेचर. ईश्वर भाव मीन्स टू प्रजापालन. ये जो है ये क्षत्रिय के स्वभाव है. अब इसमें देख लीजिए आप कि जिसमें ब्राह्मण के स्वभाव होंगे वो क्षत्रिय का काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें चाहिए आपको वेलर, स्ट्रेंथ और कुछ अकड़, है ना. और क्या कहते हैं वो क्षत्रियों के जो मंत्री होते एडमिनिस्ट्रेटर्स आर ऑलवेज ब्राह्मण. अच्छा, और इसमें they'll get all the instruction from ब्राह्मण. या अच्छा, और इसमें आगे बता रहे हैं कि लीडरशिप, जब कभी 10-15 लोग होंगे तो क्षत्रिय स्वभाव का होगा वो. he will come out and he will try to lead, Yeah. These are the or they should be able to administer. कुछ लोग होते हैं जो जैसे मैं उनको अच्छा काम किया तो लोग मैनेजर कर दिए जाते हैं. When they become manager, they become a very worst kind of manager because they don't have that
ability to lead. to control the people. Yeah. Needs all these gunas like courage and determination, resourcefulness, power, heroism. These are the generosity as well. Generosity, generosity. Because it's not only like being tough, but generous as well at the same time. Chivalry कहते थे ना, जो ब्रिटिश वो होते थे लॉर्ड्स, उनमें शिवलरी कही जाती थी कि चलो ठीक है, अगर दुश्मन के हाथ से वो तलवार छूट गई ना, they won't do it. they कहेंगे तुम उठाओ तलवार तभी हम चलाएंगे. तो ये है क्षत्रिय के स्वभाव. अब आप ये देख लीजिए, हम अपने चारों तरफ देखें तो अपने ऑफिस में देख लीजिए, मतलब there will be people, those who have these kind of qualities and they get to, and other type of देखिए, those people, they can think, they can design better things, but they are not able to execute the project. But there are some leaders who are so-called leaders, but they don't have the ability to do the job. Because maybe the prarabdha के बारे में है. I've seen in my own life, I've seen many people like CEOs, etc., that they are completely they destroy the company because they have own selfishness, and so they don't, but they became, because of prarabdha, they become the CEOs, तो पॉलिटिक्स चलता है ना काम पे बहुत ज्यादा. अच्छा, आप अगला चलते हैं. हाँ जी. अब इसमें आप देख लीजिए, there is no sense of goodness. आप ये नहीं कह सकते कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है. मतलब they are the job. I mean, these qualities you need in people if we have to. उनका स्वभाव हो गया. These are स्वभाव. Yeah, we will come to the Swabhav at the end, because they all these four are gonna be dealing with the Swabhav, and I'm sure Jayanti ji is gonna ask a question about the Swabhav in the end. Otherwise, I will ask. Okay, चलो अगला करते हैं. कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम. अब इसमें वैश्य का बताया है कि मतलब कृषि, गौरक्ष और वाणिज्य मीन कॉमर्स, वेरी गुड इन commercial activities, वैश्य कर्म स्वभावजम. परिचर्यात्मक कर्म शूद्रास्य भी स्वभावजम. परिचर्यात्मक कर्म means the menial labors. They cannot do, they don't have other qualities, but they can serve other people, manual labor. That is a शूद्रास्य भी स्वभावजम. तो ये रहा. अब ये जो finance, business, creating the wealth, this is the, इसमें इस भगवद गीता के हिसाब से these are the activities of mercantile, वैश्य का है. मतलब कि you have to create the wealth as well. Without creating the wealth, nothing will happen without the money. So they are good in that. So actually, let me just read this once. Farming, cow protection, and business are the natural work for the Vaishyas, and for the Shudras, there is labor and service to others. आजकल आप देख रहे हैं कि जब मैं वो चैनल लगाता हूँ ना, संस्कार चैनल और कोई आस्था चैनल व्हाटएवर, कितने महात्मा लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी कथा कर रहे हैं, राइट. कथा करते करते then they show their gaushalas. They're doing great job actually. Big gaushalas they are like supporting, and they're going there, monitoring everything is going well. उनको खाना खुना खिलाते सब, तो गौ की रक्षा कर रहे हैं एक तरह से. So they are kind of in this category in a way, or maybe they are doing it out of the need, because the other Vaishyas who are supposed to be also doing the Go Raksha, they are not doing their part. So now these Sant people, they're saying, although we are supposed to be in the
in the first category, like Brahmanas, doing the katha and teaching and all that, we have to also do the Gau Raksha because nobody else is doing it. So they yes, गौ रक्षा तो ऐसा है कि सभी का काम है, रक्षा मतलब जो है, but especially it was assigned to the वैश्य समाज को किया था, जिससे कि वो अपने बिजनेस भी चलाए ना वो। असल मेरा एक बहुत बड़ा, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस सेवा। सपोजिंग आई एम वर्किंग फॉर समबडी, आई एम ए सेवक, so I am a Shudra that time. No, it's not that सेवा के माने शुद्ध, सेवा करना, and so do the work is, मेरे ख्याल में ये शूद्रों में आता है। एक सेकंड, वो उस सेवा की बात नहीं करी जा रही है, ये उस सेवा की बात करी जा रही है, सेवा एज ए प्रोफेशन। ओके, सेवा एज ए प्रोफेशन। प्रोफेशन इज ए सेवा। मतलब अगर कोई मैनुअल लेबर कर रहा है ना अपनी जीविका के लिए, but this is the distinction, you know, manual labor or mind labor or computer labor or whatever, IT labor, they are all labors. नहीं, आप समझे नहीं। I'm already struggling with this thing. What is सेवा? देखिए, सेवा, आप ब्राह्मण हैं, सपोज कर लीजिए कोई क्षत्रिय है, उसके बाद वो जाके किसी की सद्भावना से सेवा करता है, तब ये उसका वो वो दूसरे भाव से सेवा कर रहा है, क्योंकि वो दूसरे काम भी कर सकता है, मतलब उसमें है कैपेबिलिटी क्षत्रिय की, लेकिन जो शूद्र है वो नहीं कर सकता, वो उसके लिए काम ही सेवा का है, उसके अलावा वो कर नहीं सकता। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ ओम जी, फिर आपको पता लग जाएगा। अब मैं अपने घर पे मैं सुबह से शाम तक I change so many hats, right now I'm wearing this hat, but सुबह से शाम तक तो मैं सुबह उठता हूँ, कोई काम आ गया, चलो मेरे बिजनेस का काम अगर शुरू हो गया तो मैं वैश्य बन जाता हूँ, राइट। उसके बाद फिर आप लोगों का संग हो जाता है तो मैं थोड़ा सा ये इस ब्राह्मण साइड पे चला जाता हूँ। तो उसके बाद अब मिसेस बोले सफाई हुई, क्या कौन करेगा, घर की इतना गंद डाला हुआ है, चलो टॉयलेट वगैरह साफ कर, तो मैं शूद्र बन जाता हूँ। पर जैसे यतीन्द्र जी कह रहे हैं कि भैया मैंने तो जाके ना वो कोई फैक्ट्री में वो जनरल लेबर का काम नहीं लिया या किसी जेनिटर कंपनी में नहीं लग गया, तो मैं अभी शूद्र का वैसे मुझे दर्जा नहीं मिल गया कि हाँ मैं शूद्र का लेबल मिल गया। बट जनरली मैं जिस काम में लगता हूँ, जैसे मेरा बिजनेस है, तो मैं अपने आप को कह सकता हूँ हाँ चलो वैश्य कैटेगरी में आ गया। I like to be in the Brahmin category because I was born in the Brahmin family, but अभी ability नहीं हुई, create नहीं हुई, पर स्वभाव है, मेरा स्वभाव है उस तरफ जाने का। I think any सेवा without being paid is सेवा, वो शूद्र का काम नहीं होता है। नहीं, हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, वो शूद्र का काम नहीं, सेवा तो कोई भी कर सकता है। इससे ब्राह्मण भी अपने गुरु की सेवा कर रहा है, कोई भी अपने गुरु की सेवा कर रहा है, ब्राह्मण है क्षत्रिय है, तो वो शूद्र थोड़ा हो गया कि उसने सेवा कर ली। चलो ठीक है। अच्छा, और एक बात और है इसमें, हर एक में तीनों गुण होते हैं। देयर इज नो क्लियर कट, देयर इज नो क्लियर कंपार्टमेंट कि आपको एक मिल जाएगा जिसमें सिर्फ 100% वो ब्राह्मण की क्वालिटीज हैं। हम शूद्र को नीचे क्यों समझते हैं? कभी नहीं समझते। कहाँ कौन कह रहा है नीचे है? किसी ने अभी कृष्ण भगवान ने कहा कि नीचे है। असल में वो सबसे बड़ा ब्राह्मण है, उसके बाद क्षत्रिय, फिर नहीं वो आप सोचते रहिए, लेकिन अभी तक जो आपने गीता पढ़ी है उसमें कहीं बताया है उन्होंने? अब मतलब कभी नहीं, शूद्र का ऐसा नहीं कभी बताया। और मैं जब ये जो सब्जेक्ट मैटर है ना, जब मैं काम पे जाता था ना, तो मेरे साथ तो मोस्टली वो लेडीज होती थी जो वॉक के लिए जाती थी, तो मैं उनके साथ चला जाता था। तो लाइक लंच के बाद तो वहां पर बस ये सब बातें शुरू हो जाती थी।
वो शुरू होता था वेजिटेरियनिज्म से, फिर then it went to that, this and that, and then फिर, oh, you guys have caste system, that's a bad. I said, no, wait a minute, no, it's like your whole body, you know. What does the brain does? Think and, you know, learns and then teaches and all that. That's a Brahmana. And then the work is done, protection is done and all that. So that's your Kshatriya. And then belly that feeds you and all that stuff, and you know, that's a Vaishya. And then legs, which take you, very important legs. You cannot say they are like derogatory terms or whatever, Shudra, and they are Shudra, but they are very important legs, they take you. So this is like in a body way, it's divided into 4. So तब उनको थोड़ी सी शांति होती थी, चलो ठीक है. No, but in practical terms, if I say, Raji, it is, sorry, in practical terms. राजी कुछ बता रहे थे. राजी कुछ कह रहे हैं. बोलिए, sorry. कुछ कहना चाह रहे हैं. मेरा विचार ये है कि जैसा कि आप कह रहे हैं, ऊंच नीच नहीं है वर्णों में, लेकिन इनका संबंध हम पैसे से लगा देते हैं. बिल्कुल लगा. पैसा बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, ऐसा लगता है सबको. तो उसी से ये ऊंच नीच आ जाती है. अब इसका सोल्यूशन क्या है पता नहीं, लेकिन पहले के जमाने में बराबर मानते हो. अब पता नहीं उस समय पैसा का जो है वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है डिफरेंट हो, जिससे कि उनका दिमाग भी ठीक रहता था. हमारा दिमाग इसलिए खराब होता है क्योंकि पैसा किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है. नहीं, नेचुरली जो मजदूर बंदा है या जो सफाई कर्मचारी है उसको कम देते हैं वेतन. वो तो हर एक नहीं, ये नेचुरल नहीं, सॉरी, ये नेचुरल नहीं है, ये तो मैन मेड है. तो हमें पता नहीं. देखिए हिस्ट्री में जब अंग्रेज आए थे यहाँ पर, तो उस समय जो है शूद्रों से 65% राजा जो थे वो शूद्र जाति के ही थे. अच्छा, तो उन्होंने, अंग्रेज बड़े स्मार्ट थे, उन्होंने जैसे ही सोचा, और वो बहुत डीप स्टडी करते थे जो कि हम भूल गए, तो उन्होंने कहा कि ये सोसाइटी, भारतीय समाज जो है 2-3 चीजों पे आधारित है. एक तो ये वर्ण विभाजन, और या वर्ण क्या कहना चाहिए इसको, व्यवस्था. हाँ, वर्ण व्यवस्था. और उसमें जो है ये ब्राह्मण बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ब्राह्मणों को सबसे पहले नीचे गिराओ, फिर परिवार. तो परिवार तोड़ने के प्रयत्न अभी तक इस समय चल रहे हैं. तो सॉरी टू से, लेकिन कम्युनिस्ट और जो अंग्रेज हैं, वो उन्होंने हमारे परिवार और वर्ण व्यवस्था को खत्म कर. ठीक है, मैं नहीं कहना चाहता. अच्छा, हाँ सुरेंद्र जी, आप कुछ बता रहे थे. मुझे, I mean, that's great. जो जैसे लिखा है इसमें बहुत अच्छा लिखा है. अच्छा, मेरे, I'm not making, I mean, they have written and it makes sense. But in real thing, I mean, I'm born a Kshatri. I mean, what do I do like that? I never went to a war. And you are born as a Brahmin, and somebody's born. So it's just an inheritance, and we continue with that. And it does not really define your real, like I was an engineer, I was not a warrior. So that's the thing. It's a miss at this point in life. That's all I'm saying. मेरा इसमें देखिए, मैं जब इंग्लैंड में था, शायद आपको इनको दीपक जी को और सुरेंद्र जी को मालूम होगा कि the janitors are paid very high. They were paid more than the engineers, because nobody, and then they become very, very, very self-sufficient, and then they also make a lift because they were living better than all those black people were the janitors. So they were living better, and they were not in gay rights because of they were living better than the white people. So in fact,
I was very amazed at how did happen in England. Wow. Okay. So England also had two systems where there's a upper and lower. They have that. They've got two. And how, I don't know the details of it, but I know that I mean, they will accept me much easily than they'll accept the lower people, and there's a division. Right from the start. I mean, when I lived there, I found it. They openly say that, you know, Suren, that I cannot go to the public school because I come from a very poor background, and that's the kind of division. I mean, human beings, I think, have created all kind of interests. For keeping myself the top, I just will demolish everybody around me. So no, I mean, this is an ideal thing, okay, which does not exist in the real world. And you know, in the UK and anywhere, when they are setting up the system, they have not read the Bhagavad Gita, and Bhagavad Gita doesn't talk about the paisa kitna milta hai, kitna nahi milta hai. It's just talking about the qualities for all those four varnas. That's all. Like अब देखिए अगले श्लोक में क्लियर हो जाएगा. That is important. Very important. स्वे स्वे कर्मण विरता संसिद्धम लभते नरा स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा विन्दति तत्शृणु. By fulfilling their duties, born of their innate qualities, human beings can attain perfection. Now hear from me how one can become perfect by discharging one prescribed duties. इसमें देखिए सब बताया है कि तीनों में से, चारों में से कोई भी जो अपने अपने स्वभाव कर रहे हैं वो परफेक्शन दे कैन अचीव. इसमें ये नहीं बताया है कि ब्राह्मणी परफेक्शन अचीव कर पाएंगे या क्षत्रिय या शूद्र नहीं कर पाएगा. इट इज एप्लीकेबल टू everybody by fulfilling their duties, those duties which are born of their innate qualities. Okay, so no question of low and up. And स्वभावजम means is जैसे जहाँ प्रारब्ध है या स्वभावजम कहाँ से होता है? प्रारब्ध से. स्वभाव की बात अब कर लेते हैं यतीन्द्र जी. चलिए, स्वभाव कहाँ से आता है? तो स्वभाव पिछले जन्मों के कर्मों से आता है या कर्मों से आता है? पिछले जन्म के. और तो वही मैं कह रहा था ना, जयंती जी पूछेंगी ना, वो हमारे संचित कर्मों से आता है कि कहाँ से आता है? संचित कर्म हर फेवरेट सब्जेक्ट. वो कृष्ण भगवान ने कहा ही है कि जिसने इस जन्म में योग का प्रयत्न किया है तो उसका नेक्स्ट बर्थ ऐसी जगह होती है, मतलब किसी पायस फैमिली में, वेयर दैट पर्सन कैन डू. अगर इस जन्म में उसने ट्राई टू एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ और सब संसार को ठीक करने की कोशिश की, तो अगले जन्म में वहां उसका होगा. ठीक है. किसी भगवान ने एक बहुत बड़ी बात बताई है कि अच्छे कर्म, शुभ कर्म कभी बेकार नहीं जाते हैं. उन्होंने उसको, अर्जुन को बहुत सांत्वना दी है कि देख, तू जो अच्छे कर्म कर रहा है तो कभी खराब नहीं होंगे. You will never go down. They will always with you, for you. और जहां से छोड़ी है प्रोग्रेस, वहीं से शुरू होगा अगली लाइफ में. ठीक है. नेक्स्ट है यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम स्वकर्मणा तम वर्चम सिद्धिम विन्दति मानवा. By performing one's natural occupation, one worship the Creator, from whom all living entities have come into being, and by whom the whole universe is pervaded. By such performance of work, a person easily attains perfection. Wow. ठीक है. सबके लिए, भगवान तो सबके लिए ही है. एक वर्ण के लिए तो नहीं है, सभी नहीं, सबके लिए एक ही है, उसी के कारण है. तो इसमें अब यहाँ पे सब क्लियर हो जाना चाहिए कि there is no hierarchy कि this is better than other. अब तक आपने देखिए 45 और 46 में
there is equality. Yeah. बिल्कुल. A man can attain perfection through मेरे ख्याल performing में his own work. सारी सृष्टि के लिए सब चीज जरूरी है to sustain it. Yeah. The only condition is that you must be dedicated to the Bhagwan. Yes. Yeah. One should be aware of that, his or her position. Yeah. That part and parcel of Lord, we are doing this. Sahajam karma kaunte sadosham api na tyajet sarvarambhahi doshen dhumen agnir avrata. नहीं, अभी आपने वो श्रेयान वाला पढ़ना था 47th. 47 रह गया. Okay, sorry. हो गया. Yeah, okay. Shreyan swadharmo viguna par dharmat so anusritat स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन आपनोति कल्पशम. It is better to do one's own dharma even though imperfectly than to do another's dharma even though perfectly. By doing one's innate duties, a person does not incur sin. So here the emphasis is that to recognize your innate qualities and do that job. So you see, in the practical life we see, to judge your innate qualities, there are, when big companies hire, they do the psychological test, one of the, to find out what is your strength and weaknesses are. So that in that way you will be successful. I have seen sometimes, people go in a certain profession because their parents say that you should go in this and this. You should become a doctor, and they have no inclination to become a doctor, and then they are unhappy whole life, So yeah, and then they do a lot of bad operations and stuff, and then they're chucked out. Yeah. So here he says that recognize your innate qualities and do that. Yeah. Shreyan Swadharmo. Yeah, it's a tough shloka to understand what it is like. To accept another's occupation and perform it perfectly. How can they do that if they don't even have that swabhava? So suppose I don't have any aptitude or swabhav for mathematics or numbers or whatever, but I'm thrown into this field, like accountant, for example, which is true with me. I've been thrown into it. I've chosen it myself, but with some degree of not going into it, but I just went into it because of necessity. But now I'm okay, but I'm not really great at it because it's not my swabhava. But I'm doing okay. So that sort of thing, I think Bhagavan was saying here, if you are inclined to be like, let's say, music, I should have put my foot down to go into that field and do something. Then my true self would have shown a little more to the world than an accountant. Now I'm like a mediocre accountant. Okay, nothing to speak of, but I could have been a musician to be spoken of. So that's just a kind of example for myself, I think, in that sort of term. I don't know how you guys think. ओम जी कुछ कह रहे हैं, मैंने आपका माइक ऑफ कर दिया था. ओम जी, आपको फिर कर देता हूँ आस्क टू अनम्यूट. असल में जो आप जो कर रहे हैं बहुत ही
I mean, it's very unusual. You have got good qualities. You don't have to be, downgrade yourself anyway. You are a good musician. You are a good accountant. You are do good income tax supporter and whatever. So whatever you're doing, you're doing very well. And I think this is seva, and seva is परमो धर्मा. या चलो ऐसा ये अच्छा है आपकी जो बात है ना, सेवा की तरह से ले लो, तो फिर चाहे तुम अकाउंटिंग करो, ये करो, वो करो, जो मर्जी करो, सेवा ही समझ के कर लो. ये अच्छी बात बताइए. No, his contribution to our senior club is phenomenal. Oh, thank you. बहुत मैं तो कहता हुआ थक गया हूँ टेंपल की कमेटी को. I personally feel it's a great that we have you there. Okay. So we promote you to be a Brahmin, which you are. Oh, that's good. अगर आप म्यूजिशियन बन जाते ना, तो हम आपके दर्शन नहीं कर पाते. We would never seen you all. This is actually seva. What you are doing. जय किशन के साथ रहते. Oh, Shankar Jai Kishan. Yeah, I like that. वो भी जिंदा है? Is he still alive? नहीं, वो they are past. One is gone. Shankar is there. Jai Kishan expired. Oh, अच्छा. Yeah, Shankar is there. He got heart attack. अच्छा. Then we won't have any contact with him. Yeah. अगर दीपक जी बनते तो ओपी नैयर ज्यादा बनते हैं. ओपी नैयर, या ओके, ठीक है. अब 427 हो गया. हाँ जी, या 427 428 हो गया. तो कहें तो यहीं पर विराम देते हैं. So we were at here Shreyan Sarvaswadharma. मेरे ख्याल से ओके. नाउ 48 कर लेते हैं क्योंकि 48 इसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है. कनेक्टेड है. ठीक है, कर लीजिए. सहजम कर्म कौन्ते सदोषम अपना त्यजेत सर्वारम्भाहि दोषेण धूमेन आग्निर आवृता. One should not abandon duties born of one's nature, even one see defects in them. O son of Kunti, indeed all endeavors are wheeled by some evil as far by smoke. तो इसमें देखिए दो चीजें बता रहे हैं कि one should not abandon duties born of one's nature, even if one sees defects in them. Okay, तो कई चीजें हो, अब ड्यूटी किसी को डिस्चार्ज करनी है, then somebody can see the defects. Just like a kshatriya, he has to kill the enemies, and there is a violence. So there is a defect. The kshatriya is fighting the battle, killing the people. So in one way, he is defending the other people, but on the other hand, there is a violence involved. Okay. O son of Kintu, indeed all endeavors are wheeled by some evil as fire by smoke. So here Lord is giving the example that there is a fire. When there is a fire, there is always smoke, okay, which is aankhon mein jata hai, useless thing. There is you won't find any pure fire. Same way, all the good works, whatever these are done, there is some kind of bad side effect. Okay. So that's what he is saying. जी देखिए, इसमें गीता पर गोरखपुर में जो स्वाभाविक कर्म का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है. प्रकृति के अनुसार शास्त्र वेद से नियत किए हुए जो वर्णाश्रम के धर्म सामान्य धर्म स्वाभाविक रूप हैं, जिनको यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभावजम कर्म, स्वभाव नियत कर्म इत्यादि नामों से कहा गया है. हाँ, बिल्कुल ठीक है. वो अप्लाई होता है जबकि जो सोसाइटी आप रह रहे हो वो वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित हो. अब हम यहाँ जो रह रहे हैं वो वर्णाश्रम अवस्था नहीं है. हम इन स्पिरिट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम नहीं कर सकते. जितना एज मच एज पॉसिबल वर्णाश्रम व्यवस्था को ऑब्जर्व कर सकते हैं वो करते हैं. तो अच्छा, ये महात्मा गांधी वर्णाश्रम को बहुत मानते थे कि बहुत जरूरी है. महात्मा गांधी की हम बात नहीं करेंगे. ओके, जस्ट लेट्स गो. I'm an example, that I mean, I'm not trying to put Gandhiji here, but I'm just saying that he valued varnashram. करते होंगे, but I doesn't look like. Asisasuri.
I don't want to go into argument, but my opinion is he did it facetiously. He did it for what? Oh. Okay. When he supported Varnashram facetiously. He did not do anything for it. He did not use it. He just said it. He said things. Okay. Anyway, I don't want to go into that. देखिए मैं बताता हूँ, Otherwise everybody gets upset. उनको प्रभुपाद ने बहुत समझाया था. प्रभुपाद ने उनको चिट्ठी लिखी थी. हाँ, he wrote it to him. Yeah. वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से उनको 75 के ऊपर he must have got out of the politics completely. Okay, he didn't go. So number one mistake. He followed the brahmacharya. Okay, that was out of completely context. Yeah. He was not supposed to observe brahmacharya जो उन्होंने किया वो completely wrong था. Okay. Yeah. I think we should stop that now. We will not be. Yeah. आप ले तो मैं बता रहा हूँ. I'm sorry to stop. बता रहा हूँ. और उन्होंने जो अपना जो काम चुना वो अपने वर्ण आश्रम के हिसाब से नहीं चुना था. Yeah. Okay, yeah, let's forget about it. Let's go. और काफी लिखा है वर्ण आश्रम के ऊपर. I've read it. उन्होंने लिखा, उनकी बुद्धि तो थी नहीं जो उन्होंने. मैं उनको बताता हूँ. He was a political activist. Okay. अभी सब्जेक्ट आ ही गया है. उन्होंने जितनी दुर्दशा की है हमारे हिंदू धर्म की उतनी और किसी ने नहीं की है. चलिए श्री राम जय राम जय जय राम. लेकिन हम उन्हीं का नाम लेते हैं. Another subject, but हमारी ये आदत है कि जो हमारा नुकसान करते हैं हम उन्हीं का गुणगान करते हैं. Can I just fill you guys in? The temple today is open since morning. Yeah. And closed at 8:30 or 8 o'clock. Just in case. इसके करके ना मैं वहीं जा रहा हूँ सेवा करने के लिए. अच्छा. So it's a very well planned and open for everybody. You can safely come in there if you wish to, if you're planning to come. And That's good. just thought to convey that to you guys. Yeah. I'm sorry. अब भजन हो गया मेरे ख्याल से. Now let's थोड़ा भजन. I'm sorry. चलिए तो हम लोग ने श्लोक नंबर 48 तक आज स्टडी कर लिया है भगवत गीता. तो इसके बाद हम अगले हफ्ते फिर 49 से कंटिन्यू रखेंगे. आज के लिए इतना ही. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जय श्री राम. मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जी पूछिए. ये अंत में भी हो सकता है सवाल, लेकिन मेरे दिमाग में अभी आया कि गीता का प्रकरण होने के बाद उसके बाद ही नंबर 1 डे वार का था. समझ नहीं आपने क्या पूछा. 18 दिन जो युद्ध हुआ, तो ये गीता का जो संवाद है, ये युद्ध से पहले ही हुआ था. ठीक है. तो उसके अगले दिन ही जिस दिन खत्म हुआ 18वां चैप्टर, तो उसके नेक्स्ट डे ही से लड़ाई चालू हो गई कि कुछ और हुआ था बीच में? उसमें यह है कि लॉर्ड कृष्णा when he killed the demon Narkasur, तो उस कृष्ण अवतार के उसमें नरकासुर को जब मारा था, उसके बाद से उस दिन दिवाली सेलिब्रेट की गई थी. नहीं, वो दिवाली की बात नहीं कर रहे हैं यतेंद्र जी. वो कह रहे हैं कि महाभारत का युद्ध जो है ना, जैसे ही भगवत गीता समाप्त हुई उसके अगले दिन से शुरू हुआ कि उसी टाइम शुरू हो गया? कैसे हुआ कि महाभारत का युद्ध तो आरंभ हो गया था बीच में थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जब शंख बज जाते हैं ना, दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर. तो शंख बज रहे थे और आर्मी आमने सामने आ गई थी. तब उसके बाद थोड़ी देर के लिए कृष्ण भगवान ने उसको समझाया था, बिकॉज ही वाज नॉट फाइटिंग. ओके. तो लड़ाई तो चालू हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए इट वाज ऑन होल्ड. सो ये 18 दिन के लिए नहीं उन्होंने समझाया था, उन्होंने उसी टाइम समझा दिया था. समय को समझाया था. नहीं, उसी लड़ाई के पहले समझा दिया था. लड़ाई के पहले समझा दिया था. उनका जो ये संवाद है ये 18 दिन तक नहीं चला था. वॉर 18 दिन तक चली थी. इसका मतलब ये है कि शंखनाद हो चुका था. तो उन्होंने रुकवा के, क्योंकि अर्जुन को ये
जरा विपासना हो रही थी, तो उन्होंने तब ये कहा, फिर युद्ध चालू हुआ। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जो नरकासुर का है वो ठीक है, लेकिन कल मैंने एक वैदिक इसके दिवाली के ऊपर जो है इन्फिनिटी फाउंडेशन जो राजीव मल्होत्रा की है, तो वहाँ एक लेडी हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया एक वैदिक एक्सपर्ट का। वो जो है मे बी ही इज अराउंड 30 समथिंग। तो उन्होंने कल दिवाली के, जैसे दिवाली के 5 दिन होते हैं, उनमें क्या करना चाहिए हम लोगों को वैदिक रीति से वो बताया था। तो उसमें उन्होंने नरकासुर का उन्होंने कहा कि मैंने रिसर्च की है शास्त्रों की, लेकिन वो बोले कि मेरी रिसर्च में, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी रिसर्च में नरकासुर का दिवाली से कोई संबंध नहीं है। हो सकता है राम से, हाँ, वो उसने यही, मैं जो उसने कहा था वो कह रहा हूँ, कंट्रोवर्सी के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि अगर कोई बिलीव करता है तो फिर वो हो ही जाता है, क्योंकि एक से दूसरा तीसरा कहने लगते हैं। तो उन्होंने तो ये कहा था, नरक चतुर्थी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे, वो इतना ही कह पाए और ज्यादा कुछ नहीं कह पाए कि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे ये प्रोसीजर 5 दिनों का, तो नरक में जाने के चांस होता है। हाँ, क्योंकि 5 दिनों का वो जो है, 5 दिनों का है, जैसे नरक क्या होती, नरक 14। हाँ, और फिर कल थी ना नरक 14। हाँ जी, कल थी। कल चतुर्थी कहलाती है। तो दिवाली का ऐसा है कि भगवान श्री राम रावण की विजय करके पास अयोध्या में आए, तो उसके अंदर उसमें लोगों ने खुशियां मनाई और दिए जलाए और भगवान का स्वागत किया। सरदारों का, सिख लोगों का कुछ और ही लीजेंड है। या उनका तो है बंदी छोड़ दिवस। हाँ, वो छोड़े थे ना गुरु। या और ग्वालियर के किले से जैनियों के तीर्थंकर का प्रमाण हुआ था। आज सुबह में सुन रहा था कि आई थिंक दे सेड अबाउट अमृतसर, वो जो है ना, आई थिंक दे वर टॉकिंग अबाउट दैट, कि दे आर हैविंग अ स्पेशल दिवाली डिनर, वेरी स्पेशल वन, and they've been put of lights and really making it to a big expansion, not limited to 6 only. It was for everybody. I just passing news, I heard that, I don't know, at Amritsar or maybe another place. Amritsar is the main place, I think. Yeah. विमला जी कुछ कह रही? मैं कुछ पूछना ही चाह रही थी। या you were talking about महाभारत से पहले ये गीता का संवाद. So I just want to know for how long it took place. I have heard about 45 minutes. So, and another thing also, I said 45 minutes एक समाध हो रहा है, and इतना वो, I mean, महाभारत के दौरान वो समझ नहीं आया. And the second thing I came to know about, it was through transmission. Hello? Yes, so, yes. I don't know, was it 45 minutes में भगवत गीता कही गई थी, और जैसे वहाँ तो बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी, as we have seen. So was it through transmission and all? ये मेरा क्वेश्चन है. मेरा ख्याल नहीं यतीन्द्र जी बता सकेंगे, because he doesn't remember what part he was playing in Mahabharata at that time. Neither do I. So suffice to say कि हम लोग, you people have so much of knowledge, and from your knowledge, if you know something, I am asking.
देखिए मैं ये नहीं कह रही कि जतिंदर जी थे या आप थे या anybody else was there. Obviously you may be there and you may not, I mean you don't remember now, you might be there at that time. Yeah. You don't बिमला जी Yeah. ये मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं ये मैंने भी विचार किया, इसके ऊपर विचार किया कि लड़ाई चल रही है और वो मतलब एक डिप्रेस्ड है पर्सन, उसको कृष्ण भगवान समझा रहे हैं, दोनों लड़ने को एकदम तैयार है मतलब, और कैसे बीच में होगा, कितनी देर लगी, क्या हुआ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि it doesn't matter whatever, what in front of me is Gita and the message and its knowledge, okay, that's what really matters to me. वहां क्या हुआ it doesn't matter। जब कृष्ण भगवान बताते हैं, जब कृष्ण भगवान मेरे को बता रहे हैं कि प्रजिहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्त तुच्छते, that thing he is telling me and I can see if I follow that I get a peace, okay। नहीं, वो तो definitely for everyone, the whole mankind, I must say, not only the Hindus, it's for whole mankind. और जो second चीज मेरे को सुनने में आई है, it was the through transmission तो फटाफट हो जाता है। लोग बता रहे हैं कि टाइम रुक गया था, the time was stopped। I saw that in one of the Mahabharats। ये भी सुना है मैंने। ये एक सीरियल आता था ना महाभारत, उसमें उन्होंने ये दिखाया था कि भी then Lord Krishna ordered the time to stop in a way like he froze everybody। जैसे हम लोग गेम नहीं प्ले करते, कहते freeze, तो उसको ऐसे freeze होना पड़ता है। I know। He told everybody freeze। I mean Krishna could do anything। It might be possible। चलिए, तो ये अच्छा हो गया, हमारा आज का डिस्कशन भी हो गई और भगवत गीता का पाठ भी हो गया। तो देखिए सबसे बड़ी बात जो है इसमें सुख का आया ना इस चैप्टर, इस संदर्भ में कि 3 तरीके के सुख है। अच्छा, सुख के पीछे हर एक भाग रहा है, तो दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल नॉलेज। मैं तो समझता हूँ कि 3 तरीके के सुख, हम किस सुख के पीछे भागें, राजसिक के पीछे या के सात्विक के पीछे। सात्विक की थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर सात्विक के पीछे मिले तो दैट इज द बेस्ट थिंग, हमारे लिए वो सात्विक सुख ही ढूंढ रहे हैं हम। पर पहले वो जो पॉइजन पीना पड़ेगा ना, वो तो डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा। ऐसे चौकड़ी मार के बैठ जाओ ना ज्यादा देर के लिए, तब भी वो पॉइजन की तरह ही हो जाता है, टांगों में दर्द, कभी कहाँ दर्द। तो चलो, नहीं वो पॉइजन तो पीते ही आ रहे हैं ना ऑल आवर लाइफ। लेकिन देखिए रिटायरमेंट में हमें चांस तो मिला है थोड़ा सा। थोड़ी सी प्रोग्रेस, एकदम सात्विक होने की क्या जरूरत है ना। सही बात है, थोड़ा सा हो जाए, अगले जन्म में फिर और होगा। चलिए, वो तो है ना। एक बात मैं कहने वाला था कि जब आप कह रहे थे ना नरक 14 के बारे में, तो कि भी वो नरक क्या है, तो मैं आपको ऐसे बचपन की बात बताता हूँ जो उषा जी को, सुरेंद्र जी को पता होगा, बिकॉज पंजाबी लोगों के घरों में ऐसे ही बोलते हैं। वो जो ना हमारे नानी जी बोलते थे, और नरक 14 दिन हैगा, सफाई सफुई कर लो और नरक नूर काट लो अपने करो, काट लो, अंदरों ना कटो। तो जो गंद पड़ा होता है ना इधर उधर, उसको नरक बोलते थे, नरक काटो। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि अपने माइंड से भी वो जो नरक वाले विचार हैं उनको निकालें बस। तो इंडिया में तो देखो काली 14 को रहेगा ना, तो घर में पकोड़ा और सब बना के वो जंतर मंतर करके 3 रास्ता मिलता है ना, उधर डाल के आते हैं कि अपने घर का कंकास ये सब उधर जाने दो, तो उस पर जो पैर रखेगा उसको जाएगा। वार्निंग, किधर भी पैर नहीं रखना। I don't like that kind of thing. No, I don't either. Don't. बात तो 3 बातों में ही खड़ी हो जाती है। Yeah, it's like throwing a banana peel for someone else to slip on. राजसिक, तामसिक और
सात्विक। बात तो तीन एक जगह पे होती है, जैसे तीन चीजें आप फॉर एग्जांपल ज्वेलरी की कर लें, हीरे मोतियों के ग्राहक तो बड़े थोड़े होंगे, सात्विक वक्त तो थोड़े ही पहुंचेंगे, और जो होगी चांदी सोना वहां थोड़े बहुत आते जाते मोस्टली आएंगे, और जो होगा ज्वेलरी आर्टिफिशियल वहां सब भागेंगे। ऐसे ही राजसिक तामसिक और सतोगिन की बात है कि सतोगिन तक पहुंचना तो हीरे मोतियों जवाहरों तक पहुंचने की बात है, उसके ग्राहक बहुत थोड़े होते हैं। थोड़े होते हैं, सही बात है। यही ऐसे ही सुख के भी इसी तरह ही ब्लिस किस तरह आएगी जब पूरा ही उसमें लीन हो जाओगे। पूरा लीन हम होते नहीं, हम तो रजोगुण में ही रहते हैं, आधा ठीक कर लिया, आधा थोड़ा अपना डिजायर में डूब गए। तो ये तो अभी भगवान जाने कब उस स्टेज तक पहुंचने के लिए कितने जन्म लगेंगे। देखिए चिंता की बात नहीं है। मेरी दादी कहती थी कि अगर इस लायक उससे कोई भी चीज नहीं आती थी तो वो कहती थी अगले जन्म में तो अगले जन्म ये तेरा इस जन्म में होने वाला नहीं है। मेरी माँ एक बात कहती थी, कहती आलिया पोलिया दा रब राखा। जो भोले होते हैं, जिनको अनजाने में गलत भी काम कर लेते हैं, तो उसका प्रभु रखवाला होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो समझने की बात है। Just want to share this morning. आपका जब हम बात करें राजसिक तामसिक राजसिक सात्विक एंड तामसिक, तो मैं सुबह जब ध्यान कर रहा था तो I practice this one. मेरे मुंह से सात्विक निकला ही नहीं। मैं भगवान से कर रहा था मुझे सात्विक रास्ते पर लगाओ, और राजसिक और तामसिक ही आता था मुंह में। बहुत कोई, then in the end I had to remember that. It's kind of strange, isn't it? That's the truth. That is the truth. Well, normally I say that, but आज मेरे जब अपनी तरफ से सात्विक कहता था तो मुंह से राजसिक निकलता था and तामसिक. Those kept going back and forth. So राशि आपने जब शुरू किया था महाभारत का, तो असल में 45 मिनट्स के बाद वो व्हाटएवर भी संजय ने बता दिया था यत योगेश्वर कृष्णो यत पार्थो धनुरत्त श्री विजयो बुद्धि नमा, कि विजय तुम्हारे बच्चों की नहीं होगी। He told the result. फोरकास्ट है जहाँ योग कृष्ण भगवान है, जहाँ कृष्ण है, और जहाँ धनुधारी अर्जुन है, वहीं विजय। हाँ, विजय वहीं करेगी। या सही बात। हमारे लिए माया का अट्रैक्शन आकर्षण बहुत तगड़ा है। चलिए एक भजन कर लें छोटा सा, तो 2 भजन कर लीजिए दीपक जी, फिर मैं तो आज्ञा लेना चाहूंगा क्योंकि। अच्छा ठीक है, ओके राज जी, हैप्पी दिवाली। I would like सबको हैप्पी दिवाली। Like to go. हैप्पी दिवाली बिमला जी। Happy Diwali to everyone, and we'll meet again. Yeah. ठीक है, Thank you. ओके जी, यू वेलकम। हैप्पी दिवाली के लिए मैं आप सबको दर्शन करवा देती हूँ अपनी लक्ष्मी माता के। ओह वाओ, आपने बनाया है, वेरी नाइस। अभी पूरी नहीं हुई है, मैं पूरा करना चाहती हूँ शाम से पहले। ये पेंसिल स्केच है, पेंसिल से कर रही हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। मैंने कहा लक्ष्मी माता का दर्शन कर लो। पूरे आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, ट्राई करती हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा करती है। दिवाली का भजन सुना दीजिए। आपकी शक्ल है उसमें, उषा जी, आपकी शक्ल है उसमें। आपकी शक्ल है उसमें, वो कह रहे हैं। मैं कहाँ वहां तक पहुंची, वहां नहीं पहुंची। वो तो कई जन्म लगे। पहुंचता कोई नहीं, वो तो अपने आप आ जाता है। देखिए हमारे पास 10 मिनट ही हैं, तो मेडिटेशन करें या कि एक भजन भी करें? भजन सुना दें आप भजन। तो मेरे पास 2 भजन यहाँ पर हैं, उसमें से जो कहें वो सुना सकता हूँ। सुमति सीता राम, या फिर राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। सुमति राम कर दीजिएगा। सुमति कर दूं, इसी पे सेट किया हुआ है। ये किसने गाया है? ये
बड़े हमारे शास्त्रीय संगीत वाले हैं जो अच्छा गाते हैं, मुझे नाम भूल गया, उनका गाया हुआ है सुमति सीताराम, और लता मंगेशकर भी बीच में थी उनके साथ में गा रही थी। मशहूर गाते हैं। हरि ओम सुमति सीताराम आत्मा राम सीताराम। सुमति सीताराम आत्मा राम सीताराम। सुमति सीताराम तरण तारण चरण चारों, तरण तारण चरण चारों धाम। सीताराम सीताराम सुमति सीताराम आत्मा राम सीताराम सुमति सीताराम। शाश्वत श्री कृपा सीता राम श्री करुणायतन। शाश्वत श्री कृपा सीता शाश्वत श्री कृपा सीता राम श्री करुणायतन। भरत लक्ष्मण शत्रुसूदन सहित श्री पंचायतन। भरत लक्ष्मण शत्रुसूदन सहित श्री पंचायतन। सर्वदा सम्मुख विराजे, सर्वदा सम्मुख विराजे। आंजनीय प्रणाम सीताराम सीताराम सुमति सीताराम आत्मा राम सीताराम सुमति सीताराम। धन्य जिसने ध्यान धर भूमध्य में देखा। धन्य जिसने ध्यान धर भूमध्य में देखा। अयोध्या है भक्त की मस्तक तिलक रेखा। अयोध्या है भक्त की मस्तक तिलक रेखा। नव द्वारा पुरी जिसका, नव द्वारा पुरी जिसका। पतित पावन नाम सीताराम सीताराम सुमति सीताराम आत्मा राम सीताराम
धन्य हो, धन्य। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भजन भी सुंदर, भजन गाने वाला भी सुंदर। एक और भजन सुना दीजिएगा, दूसरा वाला भी। अब टाइम हो गया है मेरा तो ख्याल 4:56 हो गए, तो अगर हम मेडिटेशन थोड़ी सी तो उस पे चले जाते हैं। उसमें मेडिटेशन में 10 मिनट लगेंगे, भजन जल्दी हो जाए। चलेगा, एक भजन गा के बाद में मेडिटेशन करेंगे। एक और भी करना? देखो मैं चलता हूँ। थैंक यू। ओके जी, सुरेंद्र जी नमस्कार, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। नमस्कार सुरेंद्र जी, नमस्ते। हैप्पी दिवाली। जय श्री राम। शुभम मंगलम, शुभम मंगलम। ये भजन है, भजनी के ऊपर चलेगा, वेरिएशन 2 145। ये भजन है राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। हरिओम शरण जी का भजन है। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। जो न जपे राम, जो न जपे राम, वो है किस्मत के मारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। राम जी के नाम को शिव जी ने ध्याया, तुलसी ने राम जी पर सर्वस लुटाया। कबीरा भजन कर, कबीरा भजन कर, भय मत वारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। राम नाम अमृत है, राम नाम चंदन, राम नाम देव जपे संत करें वंदन। राम नाम देव जपे संत करें वंदन। महावीर राम नाम, महावीर नाम नाम हृदय में धारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। राम 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 जपो, राम ही ध्याओ, राम नाम प्रेम जोत घर घर जगाओ। हो राम 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 जपो, राम ही ध्याओ, राम नाम प्रेम जोत घर घर जगाओ। उन्हीं की शरण लाग, उन्हीं की शरण लाग, पल न गवारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। जो न जपे राम, जो न जपे राम, वो है
किस्मत के मारे राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। राम 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 राम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए 5 तो बज गए हैं। 5 बज गए तो अपने अब हम there are only 4 people. मेडिटेशन करेंगे जयंती जी? हाँ, चलो चलो चलिए 10 मिनट का लगा देता हूँ। तो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ, तो मेडिटेशन शुरू कर देते हैं।